Hello dear students, today multiple choice questions based on application of definite integrals and it is miscellaneous exercise 5. See, continue question number first and sub question number 19. The area of the region included between the parabola y square equal to 4ax and x square equal to 4ay where a is greater than 0 is your options are A 16a square upon 3, option B 8a square upon 3, option C 4a square upon 3 and option D 32a square upon 3. So dear student, here only one option is correct. So you have to find correct option by using proper solution of the definite integrals to find the areas between two curves. Here it is given that equation of first parabola y square equal to 4ax and x square equal to 4ay where a is positive. A is greater than 0 means a is positive. See the solution. Since equations of parabolas are y square equal to 4ax, let it be equation number first. And equation of second parabola x square equal to 4ay. Here we have to find intersecting point of these two parabolas. We have to find intersecting points of these two parabolas. So how will you find the intersecting points of these two parabolas? We solve these two. So solving equation first and second, we get what we get here. Now see, what is the value of y from equation number second? So value of y from equation second, x square upon 4a. If we substitute the value of y x square upon 4a in equation first, we get x square upon 4a the whole square. X square upon 4a the whole square equal to 4ax. So this is the substitution or you can say elimination of y from equation first and equation second. हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि we eliminate the terms y from equation first and second or we eliminate the terms of x from equation first and second. तो अगर हम लोग मान लो कि इक्वेशन फर्स्ट में से x का वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर रखते हैं तो भी हमें सोल्यूशन मिलेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीज टू पैराबोलाज, या हमने y का वैल्यू यहाँ से फाइंड करके इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया तो भी सोल्यूशन मिलेगा. So we can find the solution in both the cases easily. So what should we do after that? Here value of y equal to x square upon 4a, right? So x square upon 4a whole square because here y square. So substituting y is x square upon 4a. So x square upon 4a whole square equal to 4ax. We write here. Now, square of x square upon 4a is x raised to 4 upon 16a square. X raised to 4 upon 16a square. So, x raised to 4 as it is here, but upon 16a square taking on the right hand side. So, 16a square multiplied by 4a into x, that is 64a cube x. Here 1 time x cancelled, we get x cube equal to 64a cube. Now x cube equal to 64a cube, therefore x cube equal to 4a the whole cube. X cube equal to 4a whole cube. So what should we do after this? Taking cube root on both sides, we get x equal to 4a. After getting x equal to 4a, we put the value of x equal to 4a here and then we get value of y. That is, अब समझो कि मैंने अगर x इक्वल टू 4a यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a होल स्क्वायर दैट इज 16a स्क्वायर. तो 16a स्क्वायर इक्वल टू 4ay, therefore 16a स्क्वायर अपॉन 4a इक्वल टू y. So y equal to 4a again. We get intersecting point of these two parabolas 4a
comma 4a and 0 0. Why 0 0? If we put x equal to 0 then y equal to 0, that is origin. देखो एक पॉइंट तो पैराबोला का यहाँ पर है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, ये पैराबोला जो यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए यहाँ पर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. So intersecting point of these two parabolas are 0, 0 and 4a 4a. ये हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं. तो अभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स में मिल गया. अब इसके बाद हम लोगों को फाइंड करनी है कि एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, जो कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, देखो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू पैराबोलाज. तो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू पैराबोलाज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू पैराबोलाज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 4a y1 dx एंड 0 to 4a y2 dx. y1 एंड y2 ये हमने नाम क्यों लिया, जबकि हमने यहाँ पर दूसरा वैल्यू लिखा है, लेकिन वो y1 dx y2 dx देयर आर टू कर्व्स टेकिंग फर्स्ट एज y1 एंड सेकंड एज y2. तो y1 एंड y2 के जो वैल्यूज हैं, जैसे हमको यहाँ पर फार्मूला लिखना है तो हम लोग आराम से फार्मूला y1 एंड y2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. और ये वैल्यूज क्या है, x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 4a, वैल्यू ऑफ y1 dx. तो y1 के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इज 4ax, देयरफॉर y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4ax. हमने y1 के फॉर्म में यहाँ पर रूट ऑफ 4ax को सब्स्टिट्यूट कर दिया. एंड फॉर y2 एक्स स्क्वायर अपॉन 4a इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 4a. अब ये प्रश्न आता है कि इन दोनों इंटीग्रल्स को हम सॉल्व कैसे करें, ये दोनों इंटीग्रल को इंटीग्रेट कैसे करें. अब इनको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ 0 to 4a रूट 4ax इंटू डी एक्स, रूट 4ax इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 to 4a एक्स स्क्वायर अपॉन 4a इंटू डी एक्स. अब इनको सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं आगे. अब देखते हैं यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स क्या हैं. सबसे पहले 4 इज कांस्टेंट, इसका स्क्वायर रूट देखो रूट ऑफ 4ax, तो तीनों ही टर्म का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो रूट ऑफ 4 दैट इज 2 बाहर हो गया. रूट a, यहाँ a स्क्वायर नहीं है कि हम इसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, बट इट इज कांस्टेंट, सो रूट ऑफ a टेकन आउट, ये भी बाहर हो गया. अब यहाँ पर बचता है जो वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया. तो इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रल रूट एक्स डी एक्स के लिए रूट एक्स का मतलब एक्स रेज टू हाफ, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1. तो अपॉन हाफ प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन 2, और यहाँ भी एक्स रेज टू 3 अपॉन 2, वो 3 अपॉन 2 गोज टू न्यूमरेटर एंड इट्स रेसिप्रोकल बिकम्स 2 अपॉन 3, दैट इज 2 रूट ए इंटू 2 बाई 3 इंटू एक्स रेज टू 3 बाई 2 टू द लिमिट 0 to 4a. ये रहा अपना फर्स्ट इंटीग्रल के लिए ये पार्ट हो गया, राइट. अब आते हैं सेकंड इंटीग्रल पर. यहाँ भी देखते हैं कि हाउ मेनी कांस्टेंट्स आर देयर. वी सी दैट हियर डिनोमिनेटर 4 and a both are constants, so they can be out 1 upon 4a. इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अब हमें फाइंड क्या करना है, रिमेनिंग पार्ट का इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स becomes x cube upon 3, लिमिटिंग वैल्यू 0 to 4a, ये भी हो गया. तो अब हमारा क्वेश्चन इंटीग्रेट तो हो चुका है, लेकिन इंटीग्रेशन होने के बाद अभी हमारे जो लिमिट का सब्स्टिट्यूशन है वो पेंडिंग है, रिमेनिंग है. तो आइए अब इसके लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. Here 2 root a into 2 upon 3, that is 4 root a upon 3. Now x raised to 3 by 2, limiting value 0 to 4a. तो put x equal to 4a, फर्स्ट अपर लिमिट को पुट करते हैं. जैसे हम लोग यहाँ पर 4a को पुट करेंगे तो 4a होल रेज टू 3 by 2 हो जाएगा, और माइनस 0 रेज टू 3 by 2. तो माइनस 0 रेज टू 3 by 2 क्या होता है, 0 ही होगा. सो डू नॉट राइट इट. क्या शो करना चाहें तो दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मीनिंगलेस है, सो डू नॉट राइट इट. तो ओनली 4a होल रेज टू 3 अपॉन 2 माइनस. अब आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर में 3 जो है कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन 4a इंटू 1 अपॉन 3, ये हो गया 1 अपॉन 12a आउट. एक्स क्यूब लिमिटिंग वैल्यू 0 to 4a,
तो दिस विल बी 4a होल क्यूब माइनस 0 क्यूब, और माइनस 0 क्यूब भी यहाँ पर 0 ही होगा, तो उसको भी मैंने नहीं लिखा है, नो नीड टू राइट इट। क्लियर? मीन्स हमें अब जो वैल्यू फाइंड करनी है 4a रेज टू 3/2 एंड 4a होल क्यूब, ये दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए अब इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया 4 रूट ए अपॉन 3 एज इट इज, ये होता है 4a होल रेज टू 3/2। देखो 4 रेज टू 3/2 पहले सॉल्व करते हैं। 4 रेज टू 3/2 का मतलब रूट ऑफ 4 होल क्यूब, तो रूट ऑफ 4 होल क्यूब का वैल्यू होगा 8, और यहाँ हो गया a रेज टू 3/2 दैट इज a इंटू रूट ऑफ a, क्योंकि a का पावर 1 है, इसका पावर हाफ, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड होता है और होता है 3/2, दैट इज 8 इंटू a रूट a minus 1/12a here as it is, cube of 4a 64 into a cube। अब इनको हम करते हैं सिंप्लीफाई और देखते हैं कि which option is correct in the given options। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले रूट ए इंटू रूट ए हो गया, यहाँ पर 4 इंटू 8 32, रूट ए इंटू रूट ए एंड ए इंटू ए बिकम्स ए स्क्वायर अपॉन 3, दैट इज 32 a स्क्वायर अपॉन 3 माइनस, यहाँ पर हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं, वन टाइम ए कैंसल्ड तो ए स्क्वायर रिमेनिंग हो गया, और यहाँ 4 3 जा 12, 4 16 जा 64, तो इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया दोनों नंबर को, हो गया 16 a स्क्वायर अपॉन 3। 32 a स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 16 a स्क्वायर अपॉन 3 बिकम्स 16 a स्क्वायर अपॉन 3। अभी हम चेक करते हैं अपने ऑप्शन में कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। जो हमारे यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है ए बी सी एंड डी, यहाँ पर देखते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पर मैंने देखा अपना पहला ही ऑप्शन 16a स्क्वायर अपॉन 3 विच इज राइट ऑप्शन, तो हम लोग यही राइट ऑप्शन को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेगा वहाँ पर हमको सर्कल डार्क करना होता है, तो सर्कल को अच्छे से डार्क कर देंगे। आजकल मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर्कल डार्क करना है, टिक मार्क बहुत ही कम रहता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर सर्कल को डार्क करने की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे बाय यूजिंग ब्लू बॉल पॉइंट पेन और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। डू नॉट यूज पेंसिल if it is not given in the information in the notice। So therefore option A 16a square upon 3 square units is the correct option। क्योंकि जो भी ऑप्शन में सब अपने पास नंबर्स दिए गए, ऑप्शन ए बी सी डी हैं, ऑल दीज आर इन स्क्वायर यूनिट्स। तो अगर हम लोग इसको थियोरेटिकल क्वेश्चन एज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर स्क्वायर यूनिट लिखना कंपलसरी है, और अगर मल्टीपल चॉइस है तो वहाँ पर ओनली ऑप्शंस में हमें करेक्ट डार्क करना है सर्कल को, तो डार्केंड सर्कल हमारा राइट होना चाहिए, वहाँ पर कोई यूनिट का इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में यूनिट्स लिखा हुआ है तो हमें ध्यान देना है कि विच यूनिट इज करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, हियर all these questions are very important for the CET exams, JEE exams and other competitive exams, so you should be ready for all these exams। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 20th। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 को अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द line x plus y equal to 1 and the circle x square plus y square equal to 1 is, your options are a pi upon 2 minus 1, b pi minus 2, c pi upon 4 minus 1 by 2 and d pi minus 1 upon 2। ये हमारे ऑप्शंस यहाँ पर इंक्लूड किए गए। अब इसमें से हमारे पास कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, सो वी हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन बाय यूजिंग प्रॉपर सोल्यूशन। और प्रॉपर सोल्यूशन तभी मिलेगा जब हम लोग प्रॉपर मेथड, प्रॉपर ट्रिक, प्रॉपर फॉर्मूला एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ उसको समझ करके सॉल्व करेंगे और लेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है, प्रॉपर फॉर्मूला क्या है, और उसके साथ साथ कभी कभी हमें क्वेश्चंस में प्रॉपर डायग्राम भी बनाना पड़ता है। तो प्रॉपर डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले क्वेश्चन पर फोकस करेंगे कि क्वेश्चन में कितने कर्व्स हैं, हाउ मेनी कर्व्स आर प्रेजेंट इन द गिवन क्वेश्चन, एंड द
टाइप ऑफ द कर्व, व्हाट इज द टाइप ऑफ द कर्व, ये भी देखना है। तो टाइप ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इज व्हाट। आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है। इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, and equation of given line x plus y equal to 1, let it be equation number second. Now for finding the intersecting point of circle and line we solve these two equations simultaneously. तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम x की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें या y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। तो बेटर वी पुट वैल्यू ऑफ y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू ऑफ y है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो इफ वी पुट y इक्वल टू 1 माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सिंप्लीफाई इट, वी गेट वैल्यू और वैल्यूज ऑफ x एंड y। पहले x मिलेगा, फिर x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें वैल्यू ऑफ y मिल जाएगी। और इस तरह से हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ लाइन, ये दोनों ही इजिली मिल जाएगा। और जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा तो हमें एरिया फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमने यहाँ से y का वैल्यू 1 माइनस एक्स फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर हियर, बट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 1 माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू 1। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि इसको यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर दे दिया है 1, उसको राइट साइड में सेम रखना है। फिर उनको हमें सॉल्व करना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1 एंड 1 गेट कैंसल्ड, और एक्स स्क्वायर जो यहाँ पर भी एक्सपेंड करने के बाद प्लस एक्स स्क्वायर आता है, दोनों को ऐड किया तो 2x स्क्वायर हो गया। और जो मिडल टर्म था माइनस 2x एज इट इज, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। अब इसमें हमें क्या करना है, टेकिंग 2x कॉमन, देखो 2x कॉमन करते हैं तो वी गेट 2x इंटू एक्स माइनस 1। तो 2x into x minus 1 equal to 0. So when 2x equal to 0, then x equal to 0. When x minus 1 equal to 0, then x equal to 1. So we get two values of x when x equal to 0 and x equal to 1. So when x equal to 0, then y equal to 1. When x equal to 1, then y equal to 0. ये हमारे पॉइंट्स हैं। तो अब आइए हम डायग्राम को भी प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन, गिवन लाइन जो भी हमारे पास है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन, एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1,0 एंड 0,1 पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने सॉल्व करके देखा। और सेंटर ऑफ द सर्कल ओ दैट इज 0,0, जिसका कि इस क्वेश्चन में कोई भी यूज नहीं करना है। हम लोग सिर्फ इसी के हेल्प से इसका एरिया फाइंड कर लेंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसका रेडियस भी 1 है जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। देखो, रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज 1, दैट इज आर इक्वल टू 1। ये आर इक्वल टू 1 यहाँ भी रेडियस है, आर इक्वल टू 1 ये भी रेडियस है, जो कि 1,0 0,1 भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो शेडेड पोर्शन यहाँ पर हमने शो किया है, इसी का एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया अंडर द कर्व माइनस एरिया अंडर द लाइन, ये दोनों अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमारे पास एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स मिल जाएगा इजिली। तो यहाँ पर एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन सर्कल एंड लाइन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1। देखो, कर्व वेरीज फ्रॉम 0 टू 1, तो 0 टू 1। लेकिन ये फर्स्ट इक्वेशन में आते हैं, यहाँ से देखते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। सबसे पहले y स्क्वायर निकालते हैं, सिंस y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो y स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सेकंड इक्वेशन में हमें मिलता है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन सर्कल एंड लाइन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1, जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमने ले लिया यहाँ 0 टू 1, और ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हम फिर से बोल सकते हैं y1 dx माइनस y2 dx। तो y2 के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड यूज करना है, मीन्स वैल्यू ऑफ y। तो इंटीग्रल 0 टू 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये तो हमारे पास सेपरेटेड पार्ट में आ गया इजली कि हमें फाइंड आउट कैसे करना है, इंटीग्रेट कैसे करना। तभी हम लोग इंटीग्रेशन तक पहुंच गए कि हाउ टू इंटीग्रेट। एरिया हमने यहाँ पर दोनों लिख लिया, इंटीग्रल 0 टू 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 टू 1 माइनस एक्स डी एक्स। क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर जो शेडेड पोर्शन है ये पार्ट का एरिया मिल जाएगा। तो आइए अब इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बाई टू इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स, ये इसका है फॉर्मूला विथ लिमिट 0 टू 1, क्योंकि यहाँ लिमिट जो भी रहेगी हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज x, इंटीग्रल ऑफ x इज एक्स स्क्वायर अपॉन टू एंड लिमिटिंग वैल्यू 0 टू 1। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर तो इट इज इक्वल टू, अब सबसे पहले यहाँ 1 पुट करते हैं। देखो जैसे ही हम यहाँ 1 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1, तो ये 1 माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 1, ये 0 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑल ऑफ 0। तो ठीक है, प्लस 1 बाई टू एज इट इज साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाई टू, साइन इनवर्स साइन एलिमिनेटेड ओनली पाई बाई टू, तो हाफ इंटू पाई बाई टू। फिर माइनस 0 का भी वैल्यू रखना है, पुट x इक्वल टू 0। जैसे हम लोग यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 इंटू समथिंग 0, ये भी 0, और साइन इनवर्स 0 इज ऑल्सो 0, तो ये सभी 0 हो जाएंगे। इसके लिए वो पार्ट को मैंने शो नहीं किया है। जो पार्ट 0 नहीं हुआ है, जो हमें यहाँ मिल रहा है, वो हाफ इंटू पाई अपॉन टू ओनली फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। माइनस सेकंड पार्ट में क्या मिलता है, देखिए पुट x इक्वल टू 1, अपर लिमिट पहले रखना पड़ता है, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन टू दैट इज 1 माइनस 1 बाई टू, माइनस 0, और यहाँ भी 0, तो माइनस 0 0 दोनों ही 0 होते हैं, तो यहाँ भी नहीं लिखा गया। ठीक है, तो आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि हाफ इंटू पाई अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू, हाफ इंटू पाई अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू, 1 माइनस 1 अपॉन टू इज हाफ, ये हाफ आ गया, और हाफ इंटू पाई बाई टू पाई अपॉन 4। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पर आने वाला है, पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 के फॉर्म में आ रहा है। आइए देखते हैं क्या इस तरह से ऑप्शन में लिखा गया है। पाई अपॉन 2 माइनस 1 ए नो, पाई माइनस 2 नो, सी पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। So therefore option C, pi upon 4 minus 1 upon 2 is the correct option here. तो C pi upon 4 minus 1 upon 2 square units, ये हमारा जो राइट आंसर है C है। इस तरह से यहाँ पर हमने इसको इंक्लूड कर दिया। और अगर इसी ऑप्शन को कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि टेकिंग 1 बाई टू कॉमन, तो क्या आएगा पाई अपॉन टू माइनस 1, और अगर मान लो हम इसमें से 1 अपॉन 4 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा पाई माइनस, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कोई भी वैल्यूज कॉमन करके ले सकते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें एडजस्ट करना है। तो वी शुड एडजस्ट, वी शुड मैनेज आवर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू आवर गिवन ऑप्शंस। तो अगर गिवन ऑप्शन में यहाँ और कुछ भी चेंजेस होता, कॉमन का टर्म अलग होता, तो हम लोग उसको उस वे से मैनेज करके सिंप्लीफाई कर सकते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो सभी सॉल्व हो गए। तो डियर स्टूडेंट, ये अभी 20 क्वेश्चन का सेट हमने फर्स्ट कंप्लीट किया, एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स और डिफरेंशिएशन के ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। जो स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पर न्यू ज्वाइन हो रहे हैं या अभी तक न्यू ज्वाइन हुए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें
और वो अपने प्रीवियस वीडियोस को भी जा करके देखें और अपने फ्रेंड्स को भी चैनल का लिंक शेयर करते रहें। तो डियर स्टूडेंट, अगर कोई भी डाउट है कहीं पर अंडरस्टैंडिंग में, समझने में, सॉल्यूशन में, डायग्राम में, या क्वेश्चन की मीनिंग नहीं समझ में आ रही है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो समझ में आ गया लेकिन उस क्वेश्चन की मीनिंग क्या है वो समझ में नहीं आ रही है, कभी कभी ऐसे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं स्टूडेंट के सामने, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी इंक्वायरी, कोई भी क्वेरी के लिए अगर कांटेक्ट करना है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा उसमें। और अगर कोई भी डाउट, ये टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या अदर चैप्टर्स के भी, अदर क्वेश्चंस के भी कोई भी डाउट हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, ये अगर इस टाइप के क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बना सकते हो तो अपना लिमिटिंग वैल्यू क्लियर करके सॉल्व करोगे तो भी ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन डायग्राम बनाने से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसके लिए डायग्राम कंपलसरी देना है यहाँ पर। और अगर डायग्राम छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत ही छोटे और इजी क्वेश्चन हैं, तो उनके लिए डायग्राम ड्रॉ करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को समझने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, उसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अपने थियोरेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, या किसी भी बोर्ड, एनी बोर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।